Hello everyone, welcome back to Tradomaniac. Namaste and sorry for the late update today. भाई बात ही कुछ ऐसी थी, I had to come online. मैं तो आज शायद वीडियो बनाने भी नहीं वाला था because there wasn't much of an update today after my morning update जहाँ पर मैंने आज के दिन में एक ही ट्रेड लिया था निफ्टी में, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी. लेकिन गाइस 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 इतना बड़ा न्यूज़ आया आज. मेरे पास मतलब मैंने तो न्यूज़ ऑलमोस्ट लाइव देखा बिकॉज आई वॉज ग्लूड ऑन टू माई मशीन. लेकिन उसके बाद आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, सो आई कुड नॉट रियली मेक द वीडियो. I was doing some research of my own and all that. But anyway, the news is I would want to say it's massive for India, but मैं ऐसा बोलूँगा नहीं because I have mixed opinions. शॉर्ट टर्म गेन्स बहुत बढ़िया लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म का हम लोग देखते हैं. सो दैट्स अबाउट द ट्रेड टैरिफ डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस. अभी तक 50% का हमारे ऊपर टैरिफ लगता था. इफ इफ वी सोल्ड समथिंग टू द यूएस फ्रॉम इंडिया. लास्ट ईयर ही ट्रम्प ने उस पर पहले तो 25% लगाया टैरिफ. फिर क्योंकि हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे थे तो 25% और लगाया. But today it seems Trump called Modi and they discussed this over the call. और वो ट्रेड टैरिफ्स उन लोगों ने कम कर दिए. दे स्लैश्ड द ट्रेड टैरिफ फ्रॉम 50% टू जस्ट 18%. 32% टैरिफ कम कर दिया. दिस इज मैसिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर इंडियन बिजनेसेस, especially those who export a lot of goods into the US, like pharma sector, jewelry, auto, and other sectors. So great news for the short term at least. Uh, Exporters, big businesses, even small businesses who sell their goods into the US, उनके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है. स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है because um, in that deal there are even provisions for up to zero tariff on US goods, certain goods. एंड जो पहले हम लोग मना कर रहे थे, ये दिस इज फ्रॉम अ ट्वीट फ्रॉम ट्रम्प. ओके, इंडियन साइड से अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आया है. आई विल कम टू दैट ऑल्सो. सो जस्ट लेट्स गो टू आई शो यू फर्स्ट ट्रम्प ने क्या बोला है. ही हैड मेंशन दैट, वन सेकेंड. Just a second. There are so many news. There's so many news about this. I'm looking for the tweet um, from Trump. One second. Okay, here you go. Mm, One second. गलत टाइम पे. Okay, let's directly go to, I think, Bloomberg. में शायद okay, I don't have this. Okay, fine. ट्वीट तो आप लोग देख सकते हो ट्विटर पे. So this is the news. Okay, this is what he had said. So he called Modi and he said that whatever पहले से formalities वगैरह होगा, he said he is my great friend and this and that and blah blah blah. Then he mentioned that the tariff has been reduced to 18% for all made in India products. Okay. He also mentioned that India has committed to buying American, that we are committed to buying American, and that there will be there will be a reduction of tariff and non-tariff barriers against the US to 0. ये ट्रम्प ने बोला है. एंड इज ऑल्सो मेंशन दैट हम लोग उनसे इंपोर्ट करेंगे $500 बिलियन से भी ज़्यादा का एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल और दूसरे प्रोडक्ट्स.
ये जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, दिस वाज समथिंग दैट वी हैड नॉट अलाउड देम पहले, लेकिन अब it looks like it is done now. But again, Indian side से confirmation नहीं है. This is what Modi has said. Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to the president. President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful achievement वगैरह announcement वगैरह और बहुत सारी चीज़ है. But nothing really about, okay, I don't have this logged in. Okay, but anyway, nothing much about oil. Okay, he has not mentioned. See, यहाँ भी लिखा हुआ है, if you can see, आ गया. I just read it. Okay, I don't have this right now. But anyway, so what Modi had said is कि हम लोग, he just thanked Trump to for reduction in the tariff. Okay, but हम रशियन ऑयल बंद करेंगे या फिर वी विल बाय अमेरिकन $500 बिलियन वगैरह का हम लोग गुड्स परचेज करेंगे, एग्रीकल्चरल फील्ड में उनको इन्वेस्ट करने देंगे या फिर बेचने देंगे माल, ये सब कोई कंफर्मेशन मोदी के पोस्ट से आया नहीं है. So this is a wait and watch. I don't trust Trump. Okay, he is very unpredictable, and many times he just talks too loud without substantial reasoning or proof, या कभी कभी उल्टा सुल्टा कुछ भी फेंक देता है वो, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते. Okay, I don't trust him. Most of the world does not trust him. Okay, anyway, so that was the news. Now what has happened उसकी वजह से is okay, he had, because he has mentioned that because Trump has mentioned कि zero tariff वगैरह लगाएगा इंडिया उन US goods पे and all that, तो foreign investors यहाँ पर अभी आ सकते हैं, so they will invest in India. Okay, not just because of that, but even in our budget there were provisions or there were motivations for foreign markets or foreign investors to invest in India. तो एक साथ दो जगह पे ऐसी न्यूज़ आई है जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में वापस से आए या आना चाहे. ओके, so there was just a small update on the India-US trade deal that just came out. So once again, just to do a recap, 18% का अभी इंडियन एक एक्सपोर्ट से, मतलब इनटू द यूएस, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा यूएस में उस पर 18% टैरिफ से लगेगा, विच इज़ अ मैसिव रिडक्शन ऑफ 32% फ्रॉम 50. ठीक है, अभी इस पे कोई लीगल टेक्स्ट तो नहीं आया अपार्ट फ्रॉम अ ट्वीट, बट इट लुक्स लाइक दैट्स गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. वी विल वेट फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर एंड फर्दर कंफर्मेशन. क्या पता इसमें और भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हो, विच वी डू नॉट नो येट. वी विल फाइंड आउट लेटर ऑन, शायद इसी वीक में से मालूम पड़ जाएगा. सो आई ब्रेक डाउन, मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगा ये वीडियो. ओके, आई जस्ट क्विकली ब्रेक डाउन व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड, सेक्टर वाइज इम्पैक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट्स पे, कौन सी कंपनीज में इम्पैक्ट होगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स ऑफ कंपनीज इन पर्टिकुलर बिकॉज दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, बट आई विल गिव यू सेक्टर्स. इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या होगा और कल आपको क्या करना चाहिए, या कल मैं जो करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो जस्ट टू स्टार्ट विथ क्विकली, 50% का टैरिफ था, अभी वो 18% हो गया है. द कंडीशन दैट यू, और कंडीशन नहीं, एक्चुअली कंडीशन जैसा ही बोल सकते हैं, ट्रम्प हैज़ पुट अ कंडीशन कि, और अदर ही हैज सेड इट दैट India has committed to stop buying oil from Russia, and that is why this deal has happened. But I doubt that is really going to happen because India Russia को दुश्मन तो नहीं बना सकता है. Okay, so there will be some deal on the sidelines. Maybe या फिर ये पूरा स्टोरी नहीं है, या फिर ट्रम्प जो बता रहा है वो it's not 100% true. Maybe he's saying these kind of things because he just does not want to, he's a very egoistic person. He does not want to probably bend down or show the world कि मैं झुक गया. But actually में लग तो ऐसा रहा है कि वो झुक गया है actually. Why? The biggest impact or the biggest catalyst, I think,
in getting this done was the mother of all deals, just as it is called, which is between the European Union and India, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारा टैरिफ कट कर दिया है। यूरोपियन मार्केट्स को इंडिया में एक्सेस दिया गया है। सिमिलरली इंडियन मार्केट्स को, मतलब इंडियन कंपनीज को या इंडियन एक्सपोर्ट्स को यूरोप में एक्सेस मिला है, लॉट ऑफ दोस थिंग्स। उसमें भी अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आने बाकी है, बट दिस इज दैट वो अभी यूएस को भी थोड़ा डर लगा कि यार मेरे हाथ से सब जा रहा है, ओके ये लोग सब आपस आपस में डील करेंगे तो मैं तो रह जाऊंगा। प्लस ट्रम्प वांट्स यूएसडी डोमिनेंस एंड सुपीरियरिटी। वो चाहता है कि सब हमारे पास से ही तेल खरीदो, हम वेनेजुला से लेंगे और हम आपको देंगे एंड ऑल दैट। तो एनीवे, सो ही वाज आई थिंक अ बिट स्कैर्ड, तो दिस डील हैपेंड। और भी चीज़ें हो सकती है। सी फॉर इंडिया इट मे नॉट, अगर जैसा ट्रम्प बोल रहा है वैसा ही अगर एग्जैक्टली है, देन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन, बिकॉज if there are zero tariffs on American goods, plus if American companies have now access to agricultural sector in India, uh, it's going to impact small companies a lot, because see everyone likes export quality, we like export quality, हमें बाहर की चीज़ें खरीदना पसंद है बिकॉज दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, ओके। लेकिन एक चीज़ उसमें ये भी है कि देखो अगर इतना इजीली और इतना फटाफट से बाहर की चीज़ें यहाँ पर आने दी तो हमें आदत लग जाएगी बाहर की चीज़ों की, और यहाँ पर डेवलपमेंट इतना फास्ट हो नहीं पाएगा, बिकॉज दोज कंट्रीज आर वे अहेड देन अस इन टेक्नोलॉजी, ओके। इफ वी डायरेक्टली लेट देम कम इन, तो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, उनको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा टू अपग्रेड देयर क्वालिटी टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। दे मे नॉट हैव दैट मच टाइम, और तब तक में वो बाहर की कंपनी आके सब डोमिनेट कर जाएगी। इफ यू लुक एट स्मार्टफोन्स इटसेल्फ, विद स्मार्टफोन्स इंडियन कौन सी कंपनी जो स्मार्टफोन जो बनाते, वी नो दोज हु हैव बीन बोर्न इन द 90s या 80s, they know there are companies, there was Lava, there was Micromax, Carbon, I don't know what all। तो वो सब चीज़ें, वो सब कंपनी सी, लेकिन वो कहाँ बनाती है बी फोन्स, हम कहाँ यूज़ कर पाते हैं, बिकॉज वी हैव much better technology than those companies। Even small things that we use like earphones or speakers, companies like Boat, okay, again I'm not supposed to take names, but many companies in India, they are said to be Indian companies, but they had manufacturing units in China. They still import goods from China and other countries, and then they manufacture here or assemble here। तो ये सारी चीज़ें होती है। इंडियन कंपनीज को टाइम चाहिए, वी आर स्टिल नॉट developed, we are still developing, and looking at a population, so many other socio-economic issues we have and all, उसमें और इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, they have, this is again not any political ideology or stance, but just based on history or whatever I've read and understood and seen personally, the previous governments have not really supported small manufacturers and uh, movements like sorry, one second, just give me a second, yeah। So movements like make in India and all, ये जो अभी भी हुआ है पहले नहीं था। so ये एक चीज़ अच्छी भी है कि चलो कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी, बट the smaller players, they may be at risk anyway। So what has that impacted, or how is that going to impact the Indian stock market in the short term? It's going to be great, और आपको मैं दिखाऊंगा अभी वो क्या है, what has suggested that। okay, and before that I'll just tell you about what sectors will perform the best, or be the most beneficial to this trade deal। so it's jewelry sector, auto and auto components, pharmaceuticals, because करीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर्स इंडिया एनुअली एक्सपोर्ट करता है यूएस में, इन टर्म्स ऑफ इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में भी बहुत बड़ा रोल है इन एक्सपोर्ट्स।
even in gems and jewelry, again massive exports there. तो ये सारी जो fields है उसमें impact आएगा. Okay. If I talk about the figures, जैसे मैंने बताया 8 to 10 billion dollars in pharmaceutical, फिर jewelry and gems में करीबन 3.5-4 बिलियन, फिर ऑटो में भी है करीबन डिपेंड्स बिटवीन 3 to 6 billion dollars. सो बहुत बड़ा मार्केट था, लेकिन because of the high tariffs they had to take a hit, but now things will get better for them. ठीक है. So now what is going to be the impact on Indian stock market? Okay, तो उसके पहले I'll show you something. देखो, there is one thing about the market discounts everything. The market always discounts everything. By that what I mean is, हमारे पास न्यूज़ आए, ओके, इवन बहुत बड़ी चीज़, जैसे अभी ये ट्रम्प ने मोदी को फ़ोन किया, ओके, और ये सब हुआ, ये रात को अपडेट आया है, आई थिंक इंडियन टाइम करीबन 9-10 बजे के बीच में या समथिंग. तो उसके पहले तो कुछ किसी को पता नहीं था द कॉल हैड रियली हैपेंड एट दिस टाइम, शाम को या रात को, तो लोगों को तो बाद में मालूम पड़ेगा. बट ये देखना आप, कल के बजट के बाद, बजट अनाउंसमेंट के बाद जो मार्केट गिरा है, उसके बाद आज इफ यू लुक एट दिस स्टॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एनीथिंग एल्स, ये देखो टाटा स्टील, ठीक है, ये तो मैंने एग्जिट मार दिया था लॉस में. ये टाइम देखना कहाँ पर, सुबह 11:15 बजे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेम 11 बजे. परसिस्टेंट सेम 11 बजे. LTI माइंट्री, ओके, इसमें कुछ खास नहीं था. MCX दोपहर को 11-12 बजे के बाद. अशोक लीलैंड, जस्ट सी द कोइंसिडेंस, ओके, सब एक साथ 11 बजे. निफ्टी ओवरऑल यहाँ पर हैमर जैसा बना, सॉरी ड्रैगन फ्लाई कैंडल बना. उसके बाद देखना मैसिव, यहाँ तो मैंने ट्रेड भी लिया था. इफ यू गाइज नो, if you would have seen my previous video सुबह का, I even took a trade here. I entered somewhere here and I was supposed to exit. यहाँ पर मैंने वीडियो बंद किया था and I told you guys कि 2,500 प्रॉफिट है, 2,500 होगा तो I will exit. But actually I exited at a profit of 3.7 thousand. ओके, एक दो घंटे में मैंने कुछ 1-2 घंटे में करके आई एग्जिटेड. मैं तो आज कोई ट्रेड लेने भी नहीं वाला था, बट आई सॉ दिस मूव, तो मैंने एंट्री मार ली. आई बुकड 3.7 के. 3.8 3.9 तक पहुंचा था, बट मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया. फिर मैंने सीधा उसको क्लोज कर दिया, इतना आया तो. एनीवे, पॉइंट इज, सडनली ये जंप क्यों आया? ओके, ओवरऑल सेंटिमेंट तो नेगेटिव था बिकॉज ऑफ STT एंड अदर बजट में जो, मतलब समझो फॉर एग्जांपल डिफेंस में जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा एलोकेशन नहीं हुआ. मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं हुए. STT ऐड हुआ, मतलब बड़ा काफ़ी. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को डीमोटिवेट किया गया. many things which were not really great for the market, at least for traders and even investors, unless you are a very long term investor and all. तो सेंटिमेंट तो कुछ चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से जंप क्यों आया? बिकॉज big players, they already get the news beforehand and we see the changes, or we see the impact when they take action, but we come to know about the news later on. So that is why technical analysis is very important. We may get news late, okay, but we can see the impact of whatever news is going to come. उसका impact उसके पहले ही हमें मालूम पड़ जाता है. that is what I saw here. मैं तो इनफैक्ट यार, मैंने अगर कॉल का ऑप्शन यहाँ पर बाय किया होता ना, आई टुक अ बुल पुट स्प्रेड, सॉरी हियर इन निफ्टी आई टुक अ बुल पुट स्प्रेड. अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया होता ना, आपको दिखा तो क्या होता. सो व्हाट हैपेंड इज, जैसे वो न्यूज़ रिलीज हुआ, तब से उसके पहले भी थोड़ा थोड़ा गिफ्ट निफ्टी ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके बाद देखना जब ऑफिशियल हुआ, जस्ट सी व्हाट हैपेंड. डैम अमेजिंग.
अमेजिंग अमेजिंग मूव है, देखना 4-5 दिनों का उसने सीधा रिकॉर्ड तोड़ दिया, और भी कितना बड़ा मोमेंटम में। जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर कई न्यूज़ आया था 8 बजे 9 बजे समथिंग, 8 साढ़े 8, एंड वहाँ से देखना, दिस इज द पॉइंट वेयर गिफ्ट निफ्टी क्लोज्ड 3:15 बजे, 3:30 बजे। ओके, वहाँ से देखना, इस पॉइंट से देखेंगे या फिर चलो इस पॉइंट से इस लेवल से देखते हैं कहाँ कितना ऊपर गया वो 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर 3.5% के आसपास, 3-3.25% के आसपास, मतलब 800 पॉइंट बढ़ा। ओवरऑल पूरे दिन का अगर पकड़ूं मैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप 1200 पॉइंट। ओके, प्रीवियस डे से अगर पकड़ूं मैं तो भी करीबन 1100 पॉइंट टॉप गया था, और अभी वो क्लोज हुआ 1050 के आसपास पॉइंट्स। बट स्टिल, मतलब इवन इफ यू लुक एट वेयर इट क्लोज, वहां से भी 700 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। जस्ट इमेजिन दिस। तो इतना पक्का है कि कल मार्केट तो गैप अप ओपन हो रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। हो सकता है कि 500 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, 200, 300, 400, 500, वी डोंट नो, बट इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव गैप अप। दोज हु हैव बॉट कॉल ऑप्शंस, कल जिसने कॉल बाय किया रहेगा उनकी तो भाई आज लॉटरी है। ओके, मैं खुद सुबह सुबह, मैं यू गाइस नो, मैं उस टाइप के ट्रेड्स नहीं लेता हूँ जहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, मतलब जहाँ नेकेड ऑप्शन का कोई स्ट्रैटेजी हो। सॉरी। सो जैसे कि कॉल बाय करना, पुट बाय करना, मैं वो डायरेक्टली नहीं करता हूँ। आई यूज़ क्रेडिट स्प्रेड्स, जिसमें मैं डी के खाना पसंद करता हूँ। आई एम अ सेलर, आई एम नॉट अ बायर। बट कल का दिन ऐसा है जब मैं शायद बाइंग करूँगा। आई मे बाय अ कॉल ऑप्शन। आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ क्या सिचुएशन है। ये निफ्टी है, निफ्टी का अगर हम कॉल बाय करते हैं, कल का ही रेट का मैं करता हूँ, बट आई गो फॉर इन दी मनी, नॉट OTM और ATM, बिकॉज इसके चांसेस ज़्यादा है और मुझे ज़्यादा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, बट DK मेरा ज़्यादा नहीं होगा कल। ओके, इफ़ आई बाय दिस, ये तो प्रीमियम ऑब्वियसली बढ़ने वाला है काफ़ी। आई कांट इवन से कितना बढ़ेगा, ये काफ़ी बढ़ेगा। बट अगर 25,000 का मैं लेता हूँ, अगर वो 1000 पॉइंट भी, सॉरी 200 पॉइंट भी ऊपर जाता है मार्केट, तो भी मेरा करीबन 8-9 हज़ार बनता है। 10 है, मैं कम पकड़ता हूँ। तो अगर समझो ओपन हुआ 400-500 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, एंड देन उसके ऊपर 200-300 पॉइंट ऊपर गया, मैं 8-10 हज़ार बना सकता हूँ। दिस इज अगेन इन थियोरी। वो जब मार्केट कल ओपन होगा तभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ देख के कि एक्चुअली कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम्स क्या है, बिकॉज ये फटने वाला है, सब बहुत बढ़ेगा ये। ओके, क्या पता मुझे एंट्री मिले भी कि नहीं, या तो फिर मैं नेक्स्ट वीक की देख सकता हूँ। अगर नेक्स्ट वीक का देखूँ तो सेम, अगर 25,000 पकड़ता हूँ इन द मनी, आई हैव टू पे 17,000 प्रीमियम। ओके, तो वहाँ पर थोड़ा मूव बड़ा आना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट होगा अच्छा। लेकिन विल सी। सो पॉइंट इज, ये दिखाने का मतलब ये है कि प्रॉफिट मेरा अच्छा खासा हो सकता है कल, या जिन्होंने बाई किया रहेगा कल से कॉल ऑप्शन, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज टुमारो। दिस इज माय एंड ऑफ द डे अपडेट। मैं बनाने भी नहीं शायद वाला था आज वीडियो, बिकॉज मुझे प्रॉपरली बजट के ऊपर बनाना था, बट उसमें ये न्यूज़ आ गया। सो आई थिंक आई विल मेक अ कंबाइंड वीडियो टुमारो on both the impact of the US India trade deal and budget. Let's see कहाँ पर ओवरलैप होता है। देयर आर सर्टन सेक्टर्स जहाँ पर एक ओवरलैप हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन IT है, AI। वहाँ पर दोनों तरफ से हमें पता चल रहा है कि अच्छा न्यूज़ है, तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है इन सेक्टर्स में। बट आई विल कवर दोज पॉइंट्स टुमारो। लेट्स नॉट हरी टू मच। कल देखो ये भी हो सकता है कि मार्केट्स इनिशियली ऊपर ओपन हो, गैप अप हो, ऊपर जाए, प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर से ला ला जाए। ओके, इट इज़ पॉसिबल। मिक्स्ड इमोशंस भी हो सकते हैं, बट वील ओनली नो दैट टुमारो। आज जो हमने देखा है निफ्टी में, जो गिफ्ट निफ्टी में जंप आया है, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। कल सब सुबह उठ के DIIs भी अपना मूव करेंगे। अब वो क्या मूव लेते हैं, करते हैं, वेदर दे ओनली की बाइंग बाइंग बाइंग, और फिर डू प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा ऊपर जाके, और व्हाट।
we'll see tomorrow. So stay tuned, guys. Subscribe to this channel for more videos, like my videos, and hit the bell icon. I will see you again tomorrow with another update, and I will also trade live again tomorrow with you guys. So have a good night. Namaste again, and this is Tradomaniac signing off for the day.